Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking exercise number 3.4, chapter number 3, class 10 mathematics. Chapter name: pair of linear equation in two variable by use of the elimination method. Question number first और question number second. ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट. In the last video we take the all questions of the question number first exercise number 3.4 based on the elimination method. थोड़ा सा याद कर लेते हैं. ठीक है, 2x + 3y = 4 एंड ऐसा कुछ भी इक्वेशन, all equations based on the elimination method we solved in the question number first. Now in the case of the question number second, वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम? मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट नहीं होती है. ठीक है, ध्यान सुनेंगे. इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, व्हाट इज द मीन ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द 1 टू डिनोमिनेटर? 1 टू द डिनोमिनेटर, देन फाइंड फ्रिक्शन. मुझे ऐसा लगा क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, अपन ने पूरा लिख दिया. ध्यान सुनिए स्टूडेंट. इफ वी एड 1 टू अ न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू अ डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वर्ड यूज कहाँ पर होते हैं? फ्रिक्शन में. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में, ठीक है, सबसे पहले कंसिडर करते हैं लेट फ्रिक्शन will be equal of x by y. What is the mean of the x? X that means a numerator and y that means a denominator. आपको इतना तो पता है. ठीक है, जब भी किसी रेशो में ऊपर वाली क्वांटिटी को देखेंगे तो न्यूमरेटर, नीचे वाली को देखेंगे तो डिनोमिनेटर. इफ 1 is add, I getting 1 is add to numerator and subtract 1 from the denominator. स्टूडेंट ध्यान से देखिए. देन according to the condition of question, what is the demand of question? If 1 is add to numerator that means numerator that means क्या हो गया सर? numerator बताइए कितना है? x. that means 1 is added to numerator and 1 is subtract from denominator है y. इतना समझ आए क्या? if 1 is add to numerator and 1 is subtract from denominator, फ्रिक्शन बिकम अ 1, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बजाए 1 हो जाएगी. एंड ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं. ध्यान से देखिएगा. सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट, इट बिकम 1/2. दैट मीन्स अ फ्रिक्शन बिकम 1/2. फ्रिक्शन बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर. मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर जो मैं डिनोमिनेटर में 1 को प्लस करूं, मतलब न्यूमरेटर का कोई बात नहीं हो रही है तो न्यूमरेटर वैसा का वैसा, देन फ्रिक्शन बिकम 1/2. 99.99% क्वेश्चन कंप्लीट. ऐसा मैं बोल रहा हूं सर, जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो तो आपको ये कंडीशंस बनाना आना चाहिए. फिर से एक बार देखिए. इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्ट टू डिनोमिनेटर, फ्रिक्शन बिकम 1. इफ ओनली 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, ओनली दैट मीन्स न्यूमरेटर की कोई बात नहीं है. नाउ अब कैसे करेंगे स्टूडेंट? ठीक है, x + 1 होल बाय y - 1 इक्वल टू 1/1. ठीक है, दो रेशनल नंबर दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो वहाँ पर कौन सा मल्टीप्लाई होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई x + 1 एंड 1 मल्टीप्लाई y - 1. 1 into anything will be equal of anything, x + 1 एंड y - 1. ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट. वी गेटिंग x positive y convert into negative and positive 1 convert into the form of negative. So how much? minus plus, we getting equation number first, x minus y will be equal of -2. आपको इतना समझ आ गया? By the second condition of question we getting x upon y plus 1 equal to 1/2. Now both are the rational quantities, so we have to multiply.
these into this, that means 2 into x will be equal of 1 into y plus 1. 2 into x, that means 2x and y plus 1. ठीक है. Again for the equation, for the pair of linear equation in two variable, y convert positive to negative, then we getting the second equation 2x minus y equal to 1. By the condition of the first, we getting x minus y equal to minus 2, and by second condition we getting 2x minus y equal to 1. Student, now break. Sir, we solve equation number first and second by use of elimination method, substitution method, unique solution method, cross multiplication और ग्राफ रिप्रेजेंटेटर मेथड. कोई सी भी मेथड आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, बट टुडे we taking exercise number 3.4 and demand of exercise number 3.4 use elimination method. Just for the demand of exercise we solve equation number first and second by use of elimination method, but you are not bounded students. ठीक है, आप किसी से भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं. नाउ ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, x minus y equals to minus 2 and 2x minus y equal to positive 1. Student, be carefully. आप सोचेंगे what is the fundamental theory of elimination method. आप बोलेंगे सर 2 का ऊपर इंटू कीजिए, 1 का नीचे इंटू कीजिए, 110% करेक्ट. बट here the coefficient of y is same, 110% same, so we take the opposite signatures. Okay student, ठीक है. प्लस माइनस माइनस कैंसल, प्लस माइनस माइनस 2x plus x will be equal of minus x, and minus minus plus 2 and 3 equal to 3, such that minus cancel out by the minus, we getting the x will be equal of 3. Student, we getting the first value in the form of the x, so we have to find the value of y. In the elimination method we can use equation number first and second, depends on me. I choose smallest and simple equation by use of equation number first. What is that? X minus y will be equal of minus 2. ठीक है, we putting the value of x will be equal of 3, such that 3 minus y equal to minus 2. स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप y को इधर ले जाइए या नंबर को इधर ले आइए, डिपेंड्स ऑन यू. माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, बट सिग्नेचर ड्यू टू माइनस 3 is the minus 5. Minus will be cancelled from the minus, we getting the y will be equal of 5. अब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, आंसर 3 and 5, बट डिमांड ऑफ क्वेश्चन देन फाइंड इज x by y such that friction equal to x by y, such that what is the value of the x? Student, x will be equal of 3 and y will be equal of 4, so result will be 3 by 5. Student, one more time I recall वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली डिमांड ऑफ क्वेश्चन. ध्यान से देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उस चीज़ को समझेंगे और उसको एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इफ़ वी एड 1 टू न्यूमरेटर में 1 प्लस करा एंड सब्ट्रैक्ट दैट मीन्स आ माइनस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, वी गेटिंग 1. another condition it become 1 by 2, it become 1 by 2 if only मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 added to the denominator. I hope student आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. now we moving with the next question. Student, we taking the next question. Word problem. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Student, ध्यान से सुनेंगे. इन द वर्ड प्रॉब्लम जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसका हर एक वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है.
5 years ago. What is the meaning of the ago? यहाँ पे आप देखिए 10 years later. Today let we consider, मान लीजिए कि अभी मेरी एज कितनी है 30 years. अगर जब मैं बोलता हूँ 5 years ago, that means 5 साल पहले, तो आप कितना बताएंगे 25. How you calculate? That means 30 minus 5. That means in the case of ago we used a negative sign. ठीक है, 10 years later या 10 years after 10 years you used. ठीक है, टूडेज माई एज मान लीजिए 30 है, तो 10 years later कितना हो जाएगा 40. मतलब आप क्या कर रहे हो उसमें पॉजिटिव सिग्नेचर. इन द केस एगो वी यूज द नेगेटिव, इन द केस ऑफ लेटर वी यूज द पॉजिटिव. सेकेंड, in the case of the word problem, read only the single line of question and last word of question. 5 years ago Nuri was twice as older as Sonu. Here two types of person, first one is the Nuri and second one is the Sonu. So last one is the Sonu. That means Sonu is the independent and Nuri is the dependent variable. I repeat my word. ठीक है, इन द केस ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम ऑलवेज, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट मीन्स टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. फर्स्ट वन इज द नूरी एंड सेकंड वन इज द सोनू. लास्ट वन इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड फर्स्ट वन इज द डिपेंडेंट. जो नूरी है वो डिपेंड कर रही है एज ऑफ सोनू पे. तो सर जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा उसमें हम लास्ट में जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम पहले कंसिडर करते हैं. सो in the case of solution, let the present age of Sonu will be equal of x years. Student, now let the present age of Nuri, ठीक है, नूरी विल बी इक्वल ऑफ y ईयर्स. स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा. ठीक है, x एंड y बोथ आर द रिप्रेजेंटेटर ऑफ सोनू एंड नूरी. देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? 5 years ago. सो वी कैलकुलेट कंडीशन फॉर 5 years ago. हेडिंग डाला हमने बिल्कुल आराम से, 5 years ago. ठीक है, मान लीजिए ये एक स्टोरी है. ठीक है, वैसे समझिए, द एज ऑफ सोनू इज x, एज ऑफ नूरी इज y. सो 5 years ago क्या हुआ होगा? ठीक है, द एज ऑफ सोनू विल बी इक्वल x minus 5 एंड द एज ऑफ नूरी विल बी इक्वल ऑफ y minus 5. अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं. देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, द 5 years ago Nuri was thrice. What is the meaning of the thrice? Twice, that means a double. Thrice, that means a triple. Thrice, that means a 3 times. Nuri was thrice as old the age of Sonu. Student, ठीक है, here I write the, ठीक है, statement in the form of the English alphabet. Now convert into the form of mathematics language. Nuri, what is the meaning of the Nuri? The age of Nuri will be equal of y minus 5. So Nuri replaced by y minus 5 and Sonu replaced by x minus 5. Then simply y minus 5 equal to 3 1 ja 3 and 3 5 ja 15. Student, x and y, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 3x we take positive y in the form of negative. Here minus 5 and negative 15 convert into the form of positive. So plus minus 10 will be equal of 3x minus y, such that 3x minus y will be equal of 10. Equation number first. Now second condition. In the second condition, Nuri will be twice as older than Sonu, but after 10 years, we take the heading after 10 years. The age of Sonu
Sonu will be equal of x. After 10 years, x convert into the form of x plus 10, and the age of Nuri will be equal y plus 10. Okay student, now according to the condition of question, Nuri will be that means equal. Nuri will be twice that means 2 times, twice as older Sonu. तो हमने आगे लिखा सोनू. Nuri, what is the meaning of the Nuri student? Nuri will be equal of y plus 10, and the age of Sonu, that means x plus 10. Student, y plus 10 equal to 2 into x, 2 into 10, that means 20. Now again here 2x, positive y convert into the form of negative, and 10 positive 20 convert into the form of negative. So 2x minus y plus minus 10, equation number 2. Student, that is the another question related to exercise number 3.4, elimination method. So we have to solve both equation by use of the elimination method. So by solving equation number first and second, equation number first, that means 3x minus y will be equal of 10, and 2x minus y will be equal of minus 10. ठीक है स्टूडेंट, 3x minus y equal to 10 and 2x minus y equal to minus 10. अब ठीक है, हाउ वी सोल्व इन द एलिमिनेशन मेथड? दैट मीन्स द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द x और y. या तो हम x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, बट हियर द कोफिशिएंट ऑफ y आर सेम. तो हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम साइन चेंज कर देंगे. और ये देखिए y से y कैंसल, प्लस 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 3 प्लस 2 विल बी इक्वल ऑफ 5x, प्लस 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 10 प्लस 10 विल बी इक्वल ऑफ 20, सच दैट x will be equal of 20 by 5. 5 1 ja 5, 5 4 ja 20. So we getting the value of x will be equal of 4. Now we have to put the value of x in equation number first or second, depends on me. So we select equation number first. Equation number first, that means 3x minus y will be equal of 10. 3 into x will be equal of 4 minus y equal to 10. Student, 3 4 ja 12 minus y equal to 10. So positive convert into the form of negative, minus y equal to minus 2, such that y will be equal of 2. Student, ठीक है, what is the mean of the x? Mean of x, that means the present age of Sonu. So required solution, the present age of Sonu will be equal of x, that means 4. So age will be equal of 4 years, and the age of Nuri will be equal of y, and y will be equal of 2, that means the age of Nuri will be equal of 2 years. I hope student you getting the proper solution of this question. मैं एक बार और समझा देता हूँ. कहानी है 5 years ago, 5 साल पहले. तो सर आज मुझे एज पता होगी तभी तो मैं 5 साल पहले जाऊंगा. तो लेट वी कंसिडर प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी विल बी इक्वल ऑफ y. ठीक है, 5 years ago. ठीक है, एगो दैट मीन्स माइनस x minus 5 and y minus 5. व्हाट इज द स्टेटमेंट? 5 years ago Nuri was thrice. Nuri was thrice the age of Sonu. 3 1 ja 3, 3 5 ja 15. Positive convert into the form of negative, negative convert into the form of positive, plus minus minus. 3x minus y equal to 10, equation number first. Now second statement, 10 years later, that means after 10 years, after that means a positive sign, Nuri will be twice as the age of Sonu. तो सर हेडिंग डाला आफ्टर 10 years. ठीक है, सोनू x plus 10, नूरी y plus 10. आफ्टर 10 years नूरी will be twice the age of सोनू. 2 1 ja 2,
2 10 जा 20, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर है नेगेटिव, सो वी टेकिंग -10. बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y बाय यूज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन. बट अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज नंबर 3.4 वी हैव टू चूज एलिमिनेशन मेथड. 3x - y = 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x - y = -10 इक्वेशन नंबर सेकंड. द कोएफिशिएंट ऑफ y आर सिमिलर. ठीक है, सो we change the signature of the last equation. Positive convert into negative, negative convert into positive, negative convert into positive. Y cancel by y. Plus minus minus 3x minus 2x plus minus 3x minus 2x will be equal of x, plus 10 plus 10 will be equal of 20, such that the age of Nuri, देखिए mistake, the age of Nuri x will be equal of 20. Now we put the value of x will be equal of 20, such that, देखिए such that 3 into 20 minus y, 60 minus y will be equal of 10. 60 minus 10 equal to y, so y will be equal of 50. What is the mean of the x and y? X that means the age of Sonu, so age of Sonu will be equal of 20 years, and the age of Nuri that means the y, and y will be equal of 50 years. ठीक है, आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, x and y will be equal of 20 and 50 respectively. Student, next question, word problem. The sum of digits of 2-digit number. Student, that is the most important point. 2-digit number. जब भी आपको 2-digit number आएगा तो आप कुछ भी मत पढ़िए, पहले 3 लाइन कम से कम लिखिए. ठीक है, सॉल्यूशन में लेट यूनिट डिजिट विल बी इक्वल ऑफ x and tens digit will be equal of y. स्टूडेंट इधर आइए. 36, अगर जो हम मैथमेटिक्स में सोचे 36 कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 36 आखिर 36 कैसे बना? 36 that means 3 into 10 and 6 that means 6 into 1 plus 1. 3 into 10 that means 30 प्लस 6 इक्वल टू 36. सर आप क्या समझाना चाहते हो? मैं समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए ये यूनिट प्लेस नंबर है और ये 10 प्लेस नंबर है, तो मुझे फॉर्मूला मिल गया है 10 प्लेस इंटू 10 प्लस यूनिट प्लस इंटू 1. ये फॉर्मूला है 2 डिजिट नंबर का. सो 2 डिजिट नंबर फॉर्मूला बोलिए स्टूडेंट. 10 into 10s प्लस 1 into 1s, या तो यूनिट डिजिट. नाउ 10 into 10s, व्हाट इज द मीन ऑफ द 10th डिजिट? दैट मीन्स y. 1 into 1s मतलब यूनिट डिजिट पे क्या बेटा है? x. सो 10y प्लस x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अ नंबर. ठीक है, और फटाक से इसके बाद आफ्टर इंटरचेंज मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैंने यहाँ पर नंबर लिया था 36, आई रिप्लेस या इंटरचेंज बिटवीन द 3 and 6. 3 कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ 6 and 6 इन द प्लेस ऑफ 3, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 63. इंटरचेंज दैट मीन्स अ यूनिट प्लेस चेंज इन द फॉर्म ऑफ 10s and 10s कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ 1s. तो न्यू नंबर विल बी इक्वल ऑफ स्टूडेंट 10 into 10s plus 1 into digit x replaced by y and y replaced by x, such that 10 into x plus 1 into y, so we getting 10x plus y. इक्वेशन नंबर सेकेंड, न्यू नंबर. स्टूडेंट अभी मैंने क्वेश्चन को रीड ही नहीं करा. द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर. जब भी आपको 2 डिजिट नंबर मिलेगा आप सबसे पहले ये करेंगे 2 डिजिट नंबर. व्हाट इज द मीन ऑफ द 2 डिजिट नंबर? लेट वी कंसिडर 36 इज अ 2 डिजिट नंबर, 6 इज अ यूनिट डिजिट,
36, that means 3 is a tens digit. How to 36? How to become 36? 3 into 10 plus 1 into 6. 3 into 10, that means 30. 30 plus 6, 36. तो मुझे फॉर्मूला मिल गया है 6 इज अ यूनिट डिजिट एंड 3 इज अ टेंस डिजिट. तो मेरा फॉर्मूला क्या है? 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस 1 इंटू. फॉर्मूला भूल जाओ तो आप एग्जाम में बना सकते हो. लेट वी कंसिडर यूनिट डिजिट इज x एंड टेंस डिजिट y. देन नंबर विल बी 10 इंटू टेंस प्लस 1 इंटू वंस. 10y प्लस x. इस क्वेश्चन में मुझे एक वर्ड मिला है रिवर्स. रिवर्स दैट मीन्स एक्सचेंज. x replaced by y and y replaced by x, then we getting the new number. Now अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट, द सम दैट मीन्स प्लस द सम ऑफ डिजिट्स of 2 digit number. Digits that means x and y. So according to the question, the sum of digit will be equal of 9, such that we can write x plus y will be equal of 9. Equation number first. Also 9 times this number is twice the number obtained by the reverse. The order of digits complicated situation. The sum of digit is 2 digit number is 9. Getting also that means ये किसके बारे में बोल रहा है? also that means इस पूरे स्टेटमेंट के बारे में. स्टेटमेंट मतलब sum of all digit. Sum of all digit. Also 9 times the number. Also 9 times the number. 9 times the number. Number मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? नंबर दैट मीन्स 10y प्लस x. ठीक है, मैं आपको समझा के ही रहूँगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा. 9 times this number is twice that means 2 into. 9 times of this number is twice the number obtained by reverse. Reverse that means a new number. ये नंबर कौन सा नंबर बता रहा है? वो न्यू नंबर. मतलब कहीं ना कहीं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? द सम ऑफ 2 डिजिट. द सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9. खत्म. सेकेंड 9 times this number. 9 times this number will be equal of 10y plus x. 9 times of number. अगर जो आपको ऐसा समझना है तो आप ऐसा समझ लीजिए. 9 times of number will be equal of 2 times of new number. Student 9 into number that means 10y plus x. 10y plus x and 2 into new number. What is the mean of the new number? 10x plus y. Student 9 10 ja 90. 9 1 ja 9. 2 into 10 that means will be equal of 20x and 2y. Student ठीक है, ध्यान से देखेंगे. 20x पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंड 90y positive convert into the form of negative. So plus minus that means 88y plus minus that means 18x. Student 18x positive convert into the form of negative. ठीक है, आप आराम से देखिए. इस इक्वेशन को मैं और छोटा बनाने की एक टेक्निक सिखाता हूँ. ठीक है, 18x minus 88y will be equal of 0. Now we taking the 2. बिल्कुल बच्चे सा 2 9. ठीक है, and 44y will be equal of 0. This ये इसके अपॉन में जाएगा. 44y will be equal of 0. ठीक है, एक बार और समझ लीजिए. ठीक है, 18 and 88 both are the even numbers. What is the mean of the even numbers? That means a factor by 2. तो यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया. 2 9 जा and 244y will be equal of 0. ये 2 इसके इंटू में है, सामने वाले के डिवाइड में. So 9x minus 44 will be equal of 0. Equation number first. Student, by use of equation number first and equation number second we have to find out the value of x and y. जरा ध्यान से देखेंगे. equation number first is the x plus y. x plus y equal to 9.
and second one is the 9x minus 44y will be equal of 0. स्टूडेंट यहाँ तक का आपको समझ आ गया? ध्यान से देखिए, वी हैव टू बैलेंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड. व्हाट इज द मीन ऑफ बैलेंसिंग? या तो मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल करूँ या तो मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल करूँ. नाउ मैं यहाँ पर x के कोफिशिएंट के लिए 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 9 1 जा 9, अगेन 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा 81. ठीक है, सब्ट्रैक्ट, देन एडिशन एंड फाइनली अगेन सब्ट्रैक्ट, कैंसल, प्लस प्लस प्लस, दैट मीन्स 44 प्लस 9 विल बी इक्वल ऑफ, ठीक है, कितना हो जाएगा सर ये? 44 6 एंड 53 y विल बी इक्वल ऑफ 81. देन वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 81 बाई 53. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान समझेंगे, ये जो y की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देंगे. ठीक है, देन आफ्टर यू गेटिंग द वैल्यू ऑफ x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं. फाइनली ठीक है, नंबर में x और y की वैल्यू को पुट करेंगे, देन वी गेटिंग द नंबर. ठीक है, आपको ये समझ आया? एक बार और रिकॉल कर देता हूँ. द सम ऑफ डिजिट इन 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट दैट मीन्स x एंड y आर द डिजिट. मान लीजिए यूनिट डिजिट है और ये क्या है? टेंस डिजिट. देन इन दोनों को सम करेंगे, x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 9. ठीक है, 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस 1 इंटू वंस, 10y प्लस 1x. ये क्या हो गया स्टूडेंट? नंबर. ठीक है, न्यू नंबर का मतलब क्या होता है? न्यू नंबर दैट मीन्स x एंड y आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज. सो वी गेटिंग 10x प्लस y. ठीक है, हमको कहाँ तक समझ आ गया? यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, नंबर एंड न्यू नंबर. व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? द सम ऑफ डिजिट दैट मीन्स दोनों डिजिट का सम x एंड y दोनों का सम कितना होगा? 9. सो x प्लस वाई इक्वल टू 9. ठीक है, यहाँ तक हो गया. ऑल्सो दैट मीन्स 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मतलब ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स. ट्वाइस मतलब 9 टाइम्स ऑफ नंबर विल बी इक्वल ऑफ ट्वाइस ऑफ न्यू नंबर. तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 9 इंटू 10 दैट मीन्स 90, 9 1 जा 9, 2 इंटू 20 20x एंड 2. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, प्लस कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ माइनस. मैं आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ. ठीक है, अगर जो आपको पूरा कंटिन्यू आंसर चाहिए, ठीक है, तो एक शॉर्टकट भी है, मैं वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ठीक है, ध्यान से देखिएगा शॉर्टकट. ठीक है, सबसे पहले तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 2. 9 का मल्टीप्लाई करा तो 9. क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 20x है, ये ठीक है, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव. देन वी गेटिंग द 88y प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स 11x. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर जो आप ये शॉर्टकट में बता रहा था यहाँ पर 88, ये जो इनटू में है वो सामने वाले के अपॉन में भी जा सकता है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, 11 से कैंसल करा, देन वी गेटिंग 8y इक्वल टू x सच दैट x माइनस 8y इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अब देखिए बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y इक्वल टू 0. ठीक है, साइन को चेंज कीजिए स्टूडेंट. ठीक है, प्लस 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 9y इक्वल टू 9, देन y विल बी इक्वल ऑफ 1. वी पुट द वैल्यू ऑफ द y इन एनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 9, y की प्लेस पे 1 को पुट करा, x प्लस 1 इक्वल टू 9. ठीक है, पॉजिटिव उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 9 माइनस 1, x विल बी इक्वल ऑफ 8. बट सर ये सिर्फ और सिर्फ x और y है, वी हैव टू फाइंड नंबर. क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? फाइंड द नंबर. सो नंबर विल बी इक्वल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ नंबर? ठीक है, 10y प्लस एक्स, वाई दैट मीन्स 1 प्लस x दैट मीन्स 8. 10 1 जा 10 प्लस 8 विल बी इक्वल ऑफ 18. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ.
देखिए जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने एक कैलकुलेशन में मिस्टेक करा था, मैंने उसको कम्प्लीटली रिमूव करके अच्छे से कर दिया है। जब भी ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको नंबर बनाना है, x को y और y को x के रिप्लेस करेंगे तो नया नंबर मिल जाएगा। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 3.4 ऑफ द चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।